Hello my dear students, welcome you to the online class of English. Today we will learn our third poem, that is The Hope. We are going to learn Hope poem. Let's see on the board. The Hope is composed by Rajan Singh or Rajan Agarwal. Composed by Rajan Agarwal. You know Rajan Agarwal belongs to Buhana town in Jhunjhunu. Buhana is a town next to Pilani in Jhunjhunu. He was born there and in present he lives in Udaipur. He composed nearly 50 poems in a short period. He born in 1991 and in a short period he composed many poems, that is 50 poems, and some of his poems have taken place in Oxford anthologies. Oxford curriculum है, उसमें इसके कुछ जो poems हैं उनको स्थान मिला है. Okay, let's learn the poem. The Hope. The Hope. This poem has many stanzas, and according to stanza wise we are going to learn. Let's see the first stanza. Hope is given different names. The poet Rajan Singh or Rajan Agarwal says that hope is given different names. Hope has many names. Hope is given different names. होप को कई नाम दिए जाते हैं. Some call it, some people call it expectation. What do you mean by expectation? Expectation means a belief for future. Belief, विश्वास. Expectation, आशा. Hope, आशा. Some people or some call it a expectation. और what do you mean by expectation? Expectation means a belief for future. फ्यूचर के लिए एक विश्वास जताया जाता है, एक आशा की जाती है, उसी को एक्सपेक्टेशन कहते हैं. तो होप को कई नाम दिए जाते हैं. होप का एक नाम नहीं है, होप को हम कई नामों से जानते हैं. और कुछ लोग हैं उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं. अदर्स, सम अदर्स टर्म. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म? टर्म मीन्स से, कहना. Some others say it a future relevance. Relevance, what do you mean by relevance? Relevance means related. Related. Future relevance means related to future. Related to future. Future से related. भावी प्रासंगिकता. In Hindi we call it भावी प्रासंगिकता. भावी प्रासंगिकता, भविष्य से रिलेटेड, जो भविष्य से संबंधित हो. सम अदर्स से इट फ्यूचर रिलेवेंस. फ्यूचर रिलेवेंस, भावी प्रासंगिकता. कुछ लोग इसको भावी प्रासंगिकता क्यों कहते हैं? वाई डू पीपल कॉल इट फ्यूचर रिलेवेंस? बिकॉज सम पीपल थिंक दैट इफ दे डोनेट इन प्रेजेंट टाइम or if they help poor people in present time, then their future will be good. तो इस तरह से क्या है फ्यूचर रिलेवेंस. कुछ लोग इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि जैसे कि प्रेजेंट टाइम में धर्मदान करेंगे, पुण्य करेंगे, दान करेंगे तो उनका भविष्य अच्छा होगा, ईश्वर उनका भविष्य अच्छा बनाएगा. इसलिए क्या है, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस. टर्म मीन्स से, others say it future relevance, or relevance means related to future. Okay, next one is some others think it. कुछ अन्य इससे क्या है सोचते हैं, it a measure of benefaction. Some others think it a measure of benefaction. Measure means way. Way, तरीका. Way means तरीका. Of benefaction means charitable deed. चैरिटेबल दानशीलता. डीड का मतलब क्या है? वर्क, कार्य. डीड मीन्स वर्क.
एक दानशीलता या पुण्य का कार्य। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, एक धर्म दान पुण्य का तरीका, कुछ लोग इसको कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा, और इन दिस स्टेंजा राजन अग्रवाल says that hope has different meaning, hope has many meanings, or people call it different names. In the first line, hope is given different names. Rajan Agarwal says that hope has different names, hope is given different names. Some call it expectation, कुछ लोग इसको आशा कहते हैं। Others term, some अन्य कहते हैं से फ्यूचर रिलीवेंस, भावी प्रासंगिकता। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, एंड सम अदर्स है, कुछ अन्य है, वो उसको एक दान पुण्य का एक तरीका, एक मेजर, एक मापन मानते हैं इसको। इस तरह से पहला जो स्टेंजा है उसमें होप है, होप की मीनिंग के बारे में बताता है कवि कि होप के कितनी मीनिंग्स है, होप क्या है, और कवि है होप को क्या मानता है, लोग होप को किस तरह से समझते हैं। तो यहां पर क्या है, वी कैन पुट अप ए क्वेश्चन हियर, नेम द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ होप। होप के अलग अलग जो मीनिंग है उनके नाम बताओ, एंड देन आंसर विल बी दैट होप हैज डिफरेंट मीनिंग सच एज एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलीवेंस, भावी प्रासंगिकता, एंड ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो ये क्या है, आपका आंसर होगा। तो ये आपका जो पहला स्टेंजा है वो कंप्लीट हुआ। इसमें होप को अलग अलग नामों से जाना जाता है, यही है मेन, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलीवेंस, ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। ये तीन चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है। रिमेंबर दिस मीनिंग्स। द नेक्स्ट स्टेंजा इज, द पोएट सेज दैट to me hope is the creation of soul. Soul means atma, soul means atma, creation means formation, सर्जन। तो कवि के लिए टू मी मीन्स मेरे लिए, मेरे लिए मीन्स कवि के लिए। कवि कहता है कि मेरे लिए, मैं क्या मानता हूं आशा को, होप को मैं क्या मानता हूं, होप मेरे लिए आत्मा का सर्जन है, आत्मा का विकास है। आशा यदि हमें होती है तो हमारी आत्मा का विकास होता है, आत्मा का सर्जन होता है, क्रिएशन ऑफ सोल। दैट मीन्स टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सर्जन। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, फील मतलब एहसास कराना, प्लेजरसम डिलाइटफुल, आनंददायक, आनंदमय या आनंददायक। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें सुखद है, और वी कॉल इट इन हिंदी सुखद, सुखद भी कह सकते हैं अपन इसको, आनंददायक या सुखद, जो हमें क्या सुखद एहसास कराती है। फील का मतलब क्या है, एहसास कराना, एहसास कराती है या आनंददायक महसूस कराती है। एहसास कराना या महसूस कराना, महसूस भी कह सकते हो, एहसास भी कह सकते हो। तो देखो फिर से, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए होप आत्मा का सर्जन है, आत्मा का विकास है। और यदि आत्मा का विकास हो जाता है, आत्मा का विकास, व्हाट डू क्रिएशन ऑफ सोल का मीन्स का मतलब क्या है, कुछ ज्ञान हासिल करना, और वो ज्ञान हमें क्या है, भविष्य के लिए उत्साहित रखता है। और हम यदि भविष्य के लिए उत्साहित हो जाते हैं तो सुखद फील करते हैं, सुखद महसूस करते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि आत्मा का यदि क्रिएशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जो बात है वो हमें सुखद महसूस कराती है, हम अच्छा फील करते हैं। द थर्ड लाइन इज एंड लीप, और फिर क्या होता है, यदि हमें खुशी मिल जाती है, हम सुखद एहसास कराते हैं, तो दैट लीप, लीप मीन्स जंप, तो हम उछल कूद करते हैं, हमारे में क्या एनर्जी आ जाती है, एक्टिव हो जाते हैं हम। एंड लीप विथ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मीन्स जील, जील मीन्स उत्साह,
और हम उत्साहित हो जाते हैं। एंड ग्लो, ग्लो मीन्स शाइन, एंड देयर इज शाइन ऑन आवर फेसेस, और हमारे चेहरों पर क्या है, चमक होती है, क्योंकि खुशी होती है तो चेहरों पर चमक होगी। इसीलिए कवि कहता है एंड लीव विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और हम क्या करते हैं फिर, उत्साह से उछलकूद करते हैं और हमारे चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। द नेक्स्ट वन इज इन पास्ट, पास्ट में, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मतलब टिके रहना, जीवित रहना, ऑन होप, इन पास्ट वी सर्वाइव्ड ऑन होप, पास्ट में हम आशा पर क्या है, डिपेंड रहे हैं, आशा पर जीवित रहे हैं। इट मीन्स लिव्ड, सर्वाइव्ड मीन्स लिव्ड, इन पास्ट वी हैव लिव्ड ऑन होप, हम आशा पर जीवित रहे। इफ देयर वाज नो होप वी कुड नॉट लिव इन द पास्ट, यदि आशा नहीं होती तो हम पास्ट में जीवित नहीं रहते और अब प्रेजेंट में नहीं होते। आशा ही है वो हमें सरवाइव रखा है, हमें आशा की वजह से हम सरवाइव रहे हैं, मतलब जीवित रहे हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेंजा। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। एक बार फिर से आप हिंदी में समझ सकते हो। टू मी, कवि कहता है कि मेरे लिए आशा आत्मा का सर्जन है, होप मेरे लिए आत्मा का सर्जन है, आत्मा का विकास है। और आत्मा का विकास कब होता है, जब भविष्य के बारे में हमें कुछ ज्ञान मिल जाता है, जो हमें क्या है, आगे हमारी जो तरक्की है उसके अनुसार हमें कोई नॉलेज मिल जाता है कि हमें क्या करेंगे और उसका हमें क्या फल मिलेगा। यही आत्मा का विकास है कि भविष्य को लेकर हमें ज्ञान मिलता है, और ये ज्ञान क्या करता है, हमें सुखद महसूस कराता है, और फिर हम उछलकूद करने लग जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, हमारे चेहरे चमक उठते हैं। और लास्ट में, लास्ट लाइन में कवि कहता है कि हम पास्ट में जीवित कैसे रहे, आशा की वजह से। आशा है वो हमें जीवित रखती है, यदि हमारी आशा खत्म हो जाती है तो हम जीवित नहीं रह पाते हैं। नाउ द थर्ड स्टेंजा इज we surmise. What do you mean by surmise here? Surmise means guess. Guess means अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, अनुमान या अंदाजा, guess. We surmise of future, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं कि हमारा भविष्य किस तरह का होगा। यह अनुमान कैसे लगाते हैं हम, आशा की वजह से। यदि आशा ही नहीं होती है तो हम भविष्य के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट की हमारी आशा खत्म हो जाती है, हम भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। यदि हमारी आशा है, आशा की वजह से हम भविष्य की कल्पना करते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य इस तरह का होगा, यदि हम इस तरह के कर्म करते हैं तो। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण से, के कारण से, बिकॉज ऑफ आशा के कारण से हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड। Negativity inside means negative thoughts, negative thoughts in our mind, in our या of our mind, of our mind। हमारे मस्तिष्क के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनका क्या है, किल करती है, नाश करती है, उनको दूर करती है, रिमूव करती है, उनको रिमूव्स। होप रिमूव्स और होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड मतलब अंदर, अंदर की नकारात्मकता। नेगेटिविटी मीन्स इन हिंदी वी कॉल इट नकारात्मकता, नकारात्मकता, इन हिंदी वी कॉल इट नकारात्मकता। होप है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को किल करती है, मारती है, नाश करती है। इट मीन्स हमारे माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स है उनको दूर करती है, रिमूव करती है। और नेगेटिव थॉट्स का मतलब क्या है, हम भविष्य के लिए ये इस तरह का कार्य नहीं कर सकते, इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते जिससे आगे आने वाले भविष्य में हमारा
भविष्य अच्छा हो, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दूर करती है और एहसास कराती है कि हम ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं यदि कठिन मेहनत करें तो। हम इस तरह से कठिन मेहनत करें तो हम क्या इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और ये क्या है, हमें सुखद एहसास कराती है, पॉजिटिविटी हमारे माइंड में क्या है लाती है और नेगेटिव थॉट्स को दूर करती है। और इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं फिर, लेकिन किसके कारण से लगाते हैं? आशा की वजह से। होप इज द मेन, होप प्लेस ए मेन रोल इन आवर लाइफ। होप ही सब कुछ है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है होप। एंड फिल्स, और फिर क्या है, हमें भर देती है। फिल्स मतलब भरना, एज विथ काम एंड क्वाइट मीन्स पीसफुल। और फिर हम शांत हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क के जितने भी टेंशन है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। ओके, तो दिस इज द थर्ड स्टेंजा। सी वंस मोर, we surmise, the poet says that we surmise of future, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं because of hope, आशा के कारण से ही अनुमान लगाते हैं। यदि आशा नहीं है तो भविष्य के बारे में हम नहीं सोचते हैं, और आशा ही हमें जीवित रखती है, हमें बनाए रखती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है और पॉजिटिविटी भर देती है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और फिर हम शांत हो जाते हैं, शांत एहसास कराती है। नेक्स्ट वन इज the fourth stanza. Next one is fourth stanza. Now the fourth stanza is like this, that hope makes the bird fly, makes the bird fly. Bird say hope makes the bird fly. Bird पक्षी हैं जो उड़ान भरते हैं, किस लिए? आशा की वजह से। यदि पक्षियों की भी अपनी आशा होती है, यदि वो आशा न हो तो वे उड़ान नहीं भरेंगे। और आशा किस तरह की होती है? व्हाट टाइप ऑफ होप? दे हैव इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, इन सर्च ऑफ, की तलाश में, की तलाश में। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा पक्षियों को उड़ाती है। क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। किसके लिए? फॉर यंग वंस, फॉर देयर यंग वंस। यंग मीन्स मतलब उनके छोटे बच्चे, पक्षियों के छोटे बच्चे। यंग मीन्स छोटे, छोटे बच्चे। तो क्या है? स्मॉल बर्ड्स। यंग मीन्स स्मॉल बर्ड्स और देयर चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे। यंग मीन्स छोटे। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप पक्षियों को क्या है? उड़ाती है। होप पक्षियों को उड़ाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है? उनकी तलाश में क्या है? उनको उड़ाती है। Now we can put up a question here, why do bird fly? Why do birds fly? पक्षी क्यों उड़ते हैं? The birds fly in search of food for their young ones. पक्षी क्यों उड़ते हैं? अपने छोटे बच्चों के भोजन की तलाश में उड़ते हैं। In search of means तलाश में। And material, material means straw, straw means घास फूस या तिनका, तिनका, घास फूस या तिनका, घास फूस या तिनका, तिनका। क्लॉड, क्लॉड भी कहेंगे अपन, CLOD, क्लॉड मीन्स तिनका या तिनके, तिनके मीन्स क्लॉड्स, स्ट्रा मीन्स घास फूस या तिनका। एंड मटेरियल टू बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, टू मेक, टू मेक और बनाना। देयर होम्स, होम मीन्स नेस्ट, घोंसले। तो देखो यहां पर कवि क्या कहता है? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा है पक्षियों को उड़ाती है। मतलब आशा की वजह से पक्षी उड़ते हैं,
लेकिन वो उड़ते क्यों हैं? अपने छोटे बच्चों के भोजन की तलाश में उड़ते हैं। एंड मटेरियल मीन्स घास फूस या तिनकिया, उनकी जरूरत क्यों उड़ती है? उनके लिए भी उड़ान भरते हैं। और उनकी जरूरत क्यों होती है? टू बिल्ड देयर होम्स, अपना घर बनाने के लिए। घर मीन्स नेस्ट, घोंसले, अपना घोंसला बनाने के लिए, ताकि आगे आने वाला जो बारिश का और तूफानी मौसम है उससे अपने बच्चों को और अपने आप को बचा सके। इसीलिए वो क्या है? मटेरियल की तलाश में भी उड़ते हैं और भोजन की तलाश में भी उड़ते हैं। भोजन की तलाश में अपने छोटे बच्चों के लिए, और मटेरियल की तलाश में, घास फूस की तलाश में अपने घोंसले बनाने के लिए वो उड़ान भरते हैं। तो आशा ही पक्षियों को उड़ान भराती है। यदि उनके छोटे बच्चे न हो और यदि उनको घोंसले की जरूरत न हो तो इस तरह से क्या है, ये दोनों ही कार्य वे नहीं करेंगे और वे इसके लिए उड़ान नहीं भरेंगे। इसलिए आशा ही है वो उड़ान भराती है कि उनके बच्चे क्या हैं, बड़े हो जाएंगे, उनके साथ उड़ान भरेंगे और घोंसला यदि बना लेंगी तो आगे आने वाले तूफानी मौसम में अपने बच्चों को वह बचा पाएगी। ये आगे की आशा है, ये आगे की होप है। होप मीन्स ए बिलीफ फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक विश्वास है। दिस इज द फोर्थ स्टेंजा एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द फिफ्थ स्टेंजा, दैट इज it is the hope that makes a bird. What do you mean by bird? A newly leaf, patti, or we can say that an undeveloped leaf, एक अविकसित पत्ती, वही बर्ड है। इन हिंदी भी कॉल इट कली, कली। तो देखो यहां पर इट इज द होप, यह आशा ही है, यह आशा ही होती है दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली को क्या करती है? स्टे का मतलब टिके रहना, टिकना। दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच मीन्स टहनी, एंड ब्लूम मीन्स खिलना। It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. यह आशा ही होती है जो एक कली को क्या है? टहनी पर टिकाए रखती है। और फिर क्या है? ब्लूम का मतलब क्या है? खिलना। तो एक पत्ती को टिकाए रखती है और खिलने के लिए बरकरार रखती है। इसका मतलब क्या है? यदि जो पेड़ है उस पेड़ को यदि बराबर पोषण तत्व मिले, पानी मिले, तो यहाँ पर क्या है? पत्ती है, वो आगे पूरी विकसित हो जाएगी। इसके लिए वो टिकी रहती है और फूल भी क्या आगे खिल जाता है, क्योंकि उसको बराबर पानी वानी मिलेगा। इसकी आशा होती है कि पेड़ को बराबर पोषक तत्व और पानी मिलेगा, इसीलिए क्या है? फूल है वो अपने टाइम पर खिलेगा। और जो अनडेवलप्ड लीफ है, अविकसित जो पत्ती है, एक कली है, वो भी क्या है? पूरा रूप धारण कर लेगी। यदि मानो कि उनकी आशा खत्म हो जाती है कि पेड़ को पोषक तत्व नहीं मिलेगा, नहीं पानी मिलेगा, तो हम क्या है? इस तरह से फूल खिल नहीं सकता और पत्ती है पूरे अपने समूचे विकास का रूप धारण नहीं कर सकती। इसीलिए क्या है? वो यहाँ पर टिके नहीं रहती है, वो झड़ जाती है और फूल भी नहीं खिलता है, वो क्या झड़ जाता है। इसीलिए आशा, होप मीन्स ए बिलीफ फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक विश्वास है कि पेड़ को पूरा पानी और पोषक तत्व मिलेंगे, इसीलिए वो टिकी रहती है। और फूल की कली है वो भी टिकी रहती है कि उसे भी एक दिन खिलना है, और पत्ती भी टिकी रहती है कली के रूप में कि उसे भी एक पूरा रूप धारण करना है। ट्रीज लॉस मीन्स खोना। ट्रीज लॉस दे लीव्स मीन्स पत्तियां, विथ ए होप, तो आशा के साथ। नेक्स्ट लाइन है ट्रीज लॉस देयर लीव्स विथ ए होप, पेड़ भी क्या है? आशा के साथ अपनी पत्तियां खो देते हैं, आशा के साथ अपनी पत्तियों को खो देते हैं पेड़ भी। दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय लेडेंड? फुल्ली लोडेड, पूरी तरह से लदालद भरा हुआ। विथ ग्रीन ह्यूज मीन्स कलर्स, ग्रीन कलर्स, पूरे हरे रंग से लद जाएगा। दैट एक दिन पेड़ पूरे
हरे रंग से लद जाएगा। इस तरह से क्या है, पेड़ भी अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, उनको खो देते हैं, क्योंकि उनको आशा होती है कि यदि पुरानी पत्तियां झड़ जाएंगी तो उनके एक दिन नई पत्तियां आएंगी। तो इसी वजह से, इस आशा की वजह से वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं कि एक दिन क्या है, पेड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा, नई पत्तियों से लदालद हो जाएगा। तो इस तरह से क्या, ये उनको आशा होती है। यदि पेड़ को मालूम हो कि उनके नई पत्तियां नहीं आएंगी तो वो अपनी पत्तियों को नहीं झाड़ेगा। इसका मतलब ये है। ओके, इज इट क्लियर फॉर यू? Okay, next one is hope enlightens. What do you mean by enlighten? Enlighten means makes free from confusion. Confusion, doubt से दूर करना, helpful to know, जानने के लिए सहायक होना। Enlighten का मतलब क्या है, हमें कोई जिस बात का ज्ञान नहीं है उस ज्ञान का एहसास कराना ही enlighten होता है। लेकिन यहां पर मीनिंग देखो, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी। ग्लूमी मतलब डार्क, अंधकारमय। ग्लूमी मीन्स इन हिंदी वी कॉल इट अंधकारमय। थ्रोफेयर्स मतलब वेस मीन्स आम रास्ते, आम रास्ते, जीवन के अंधकारमय आम रास्ते। इसका मतलब क्या है, यदि जीवन में आगे जीना है और जिन रास्तों पर जीवन में चलना है उसमें अंधेरा हो तो व्यक्ति नहीं चल सकता, उसके सामने मुसीबतें आ जाती हैं। तो आशा क्या करती है, इसका मतलब क्या है, जीवन में नहीं आगे बढ़ सकता, वह आगे नहीं चल सकता क्योंकि उनके रास्ते अंधेरे होते हैं। इसीलिए आशा यदि उनको होती है कि हम ऐसा करेंगे तो भविष्य के लिए में ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या है कि ज्ञान है। ये एनलाइटन का मतलब क्या, उनका जो भ्रम है वो दूर कर देती है कि तुम जीवो और आगे क्या, भविष्य में तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा। तो ये क्या है, ज्ञान का एहसास कराना ही है। तो यहाँ पर आशा क्या करती है, मतलब भविष्य का विश्वास है, उसे क्या कहेंगे, होप कहेंगे। तो होप क्या करती है, जीवन के अंधकारमय रास्तों को जगमगा देती है। तो एनलाइटन का मतलब यहां पर क्या, लाइट्स। लाइट का मतलब क्या है यहां पर, जगमगा देना, जगमगा देना। तो हमारे जीवन के जो अंधकारमय रास्ते हैं उनको आशा क्या करती है, जगमगा देती है, जिससे क्या है, उनमें उजाला होने के कारण आसानी से चल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आशा हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। आशा से ही हम जीवित रहते हैं और आशा से ही हम जीवन में आगे जीवित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या करती हैं, एंड मेक्स अस फील, और हमें क्या है, एहसास कराती है, द फ्रेशनेस। फ्रेशनेस मीन्स ताजगी, ताजगी, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, हमें तरोताजा महसूस कराती है। और वार्मथ मीन्स हीट। हीट का मतलब क्या है यहाँ पर, हियर प्लेजरसम। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब क्या है, सुखद, सुखद महसूस कराती है हमें। ऑफ द डेज अहेड, अहेड मीन्स दैट विल कम इन फ्यूचर, जो भविष्य में आएंगे, मतलब भविष्य में आने वाले जो दिन हैं, आगे आने। अहेड का मतलब आगे आने वाले, आगे आने वाले, आगे आने वाले। तो सी वंस मोर, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। आशा है जीवन के अंधकार में रास्तों को जगमगा देती है, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी हमारा कंफ्यूजन होता है, जो डाउट होती है, उनको दूर कर देती है, हमारी शंकाओं को दूर कर देती है। और इससे क्या होता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं कि किसी तरह की कोई रुकावट हमारे जीवन में नहीं है, और फिर हम सुखद महसूस करते हैं। कब, आगे आने वाले दिनों में। तो ये इस तरह से। एंड द लास्ट एंजॉय इज होप मेक्स लाइफ गो ऑन। इसलिए आशा ही क्या करती है, हमें गो ऑन का मतलब क्या, आगे बढ़ाना। गो ऑन का मतलब क्या है, आगे बढ़ना या बढ़ाना, आगे बढ़ना। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। तो आशा हमें क्या है, जीवन में आगे बढ़ाती है। जीवन में मतलब हमारा जीवन है जारी रखती है। यदि आशा न हो तो हमारा जीवन आगे जारी नहीं रह पाता है।
Life is a derivative. What do you mean by the word derivative here? The life is a derivative. Derivative means financial security here. Here in this poem, derivative means financial security, आर्थिक सुरक्षा. In Hindi we call it a व्युत्पन्न. व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब क्या है? इसको एक प्रोडक्ट की दृष्टि से लेंगे, और प्रोडक्ट का मतलब किस तरह का प्रोडक्ट की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित. लाइफ इज ए डेरिवेटिव, और लाइफ क्या है, जीवन क्या है, डेरिवेटिव है ऑफ द फंक्शन. फंक्शन मीन्स कार्य, वर्क, डीड, कॉल्ड होप. तो यहां पर कवि क्या कहता है? होप मेक्स लाइफ गो ऑन. आशा जीवन को आगे बढ़ाती है. लाइफ इज ए डेरिवेटिव, और जीवन क्या है? एक लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन एक व्युत्पन्न है. मतलब जीवन क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी मानेंगे हम यहां पर इसको. फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ऑफ द फंक्शन, और कार्य क्या, जो कार्य है, फंक्शन मतलब कार्य, और कार्य क्या है? कोड होप. तो कार्य कौन सा है? आशा. आशा नामक कार्य जीवन है, वो आशा नामक कार्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आर्थिक सुरक्षा. आशा नामक कार्य की आर्थिक सुरक्षा है जीवन. इसका मतलब देखो, लाइफ है वो आशा नामक कार्य का व्युत्पन्न है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स होप है वो कार्य करती है. आशा की बदौलत क्या है? कार्य. आशा एक कार्य के रूप में अपनी भूमिका अदा करती है, और उससे क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है आगे आने वाले दिनों के लिए, और फिर क्या है? हमारा जीवन बरकरार रहता है. इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में होप का महत्वपूर्ण रोल होता है. होप का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है. होप महत्वपूर्ण कार्य करती है जीवन को आगे बढ़ाने में. और जीवन को आगे बढ़ने में किस चीज की जरूरत होती है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत होती है. यदि इस युग में फाइनेंशियल सिक्योरिटी न हो तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है. और वो आशा ही है कि हमें इस तरह का कार्य करवाती है हमसे, जिससे हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत हो जाती है, और फिर हम हमारे आने वाले जीवन में अच्छे से जी सकते हैं. इसीलिए यहां पर क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ डेरिवेटिव है. और होप क्या है? होप है कार्य. ओके, लाइफ क्या है? डेरिवेटिव, एंड होप मीन्स फंक्शन, कार्य. होप इज द प्राइम एक्सीलेंस. होप क्या है यहां पर? अब देखो, एक क्वेश्चन कैन बी पुट अप हियर. यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि what is derivative? Now the answer will be that life is a derivative. जीवन क्या है? डेरिवेटिव है. And what is function in this stanza? इस स्टेंजा में फंक्शन क्या है? आशा. या फिर आशा क्या है? What is hope in this stanza? In this stanza hope is function. होप कार्य. इस तरह से आप आंसर का जवाब दोगे. होप इज द प्राइम एक्सीलेंस. होप क्या है? मुख्य. प्राइम मीन्स मेन या मेजर, एक मुख्य. एक्सीलेंस मीन्स सुपीरियोरिटी, ग्रेटनेस मीन्स श्रेष्ठता. तो होप क्या है? हमारे जीवन में श्रेष्ठ है. मतलब होप एक मुख्य श्रेष्ठता है हमारे जीवन में, इसके बराबर कुछ नहीं है. ये महत्वपूर्ण है. इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. राइट. राइट मीन्स ठीक. ठीक. फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. ये कब से हमारे जीवन में श्रेष्ठता बने रहती है, या कब से हमारे जीवन में मुख्य श्रेष्ठता बनी रहती है? जब किसी का जन्म होता है. मतलब किसी के जन्म से लेकर आशा है, उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. वो श्रेष्ठ बनी रहती है, क्योंकि आशा ही जीवन को बनाए रखती है. होप सस्टेन्स लाइफ. होप सस्टेन्स लाइफ. सस्टेंस बनाए रखना, आशा जीवन को बनाए रखती है. इसलिए यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है.
और इसी की बदौलत हम जी पाते हैं आगे आने वाले दिनों में। तो देखो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है होप ओनली, और होप सस्टेन्स लाइफ। आशा ही इसकी थीम है और आशा ही हमारे जीवन को बरकरार रखती है। तो ये आपका पोएम है और इससे रिलेटेड पोएट से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।